I hereby name Sri Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named. Dangerous example. मैं तो यही कह सकता हूँ, सद्बुद्धि आए. Take your seat, both sides. Take your seat, both sides. People of this country. Question number 121. For not continuing with question hour is the opposition. We are setting a very dangerous example. मैं तो यही कह सकता हूँ, सद्बुद्धि आए. कुछ तो सीमा होती होगी. कुछ जगह तो बख्शो. संसद का शीतकालीन सत्र अब काल के लिए स्थगित कर दिया गया. शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में विपक्षी दलों के गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई. सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसदों से सदन चलाने की बार बार अपील की. बावजूद इसके सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी. तमाम गतिरोध के बाद भी सरकार की इच्छा शक्ति और सभापति जगदीप धनखड़ के संकल्प शक्ति की वजह से सदन ने कई अहम विधेयकों को पारित किया. राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने समापन संबोधन में कहा कि सत्र के दौरान सदन ने अहम कार्य निपटाए. सत्र के दौरान कुल 17 विधेयक पारित किए गए. इनमें जम्मू कश्मीर, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और 3 आपराधिक कानून विधेयक शामिल हैं. बावजूद इसके सभापति जगदीप धनखड़ उच्च सदन में विपक्षी दलों के सांसदों के व्यवहार से काफी आहत दिखे. We were able to transact business for 65 hours during the 14 sittings and addressed over 2,300 questions from Treasury and the opposition benches. Weaponizing disruption and disturbance as a political strategy doesn't resonate with our constitutional obligation of keeping the interest of the people at large above any other political considerations. Honorable members, in line with our progressive initiatives of previous sessions, in this session as well, we have ensured that our esteemed lady members would continue to represent 50% of the panel of vice chairpersons and the table of the House. I thank each and every member of the panel for their effective contribution in handling the session. During the course of the session, interns from various institutions from Andaman, Kerala, Rajasthan, Ladakh, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh had the benefit to observe the functioning of Rajya Sabha. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर से सदन चलाने की अपील, राज्यसभा के सभापति की भावुक अपील, जिम्मेदार आवाज, जनता के प्रति जवाबदेही, सब तरह की कोशिशें, लेकिन नतीजे वैसे नहीं आए जैसे आने चाहिए थे. देश की सबसे बड़ी पंचायत से देश के आमजन के मुद्दे कहीं पीछे रह गए. जानकार इसे सियासत बता रहे हैं, लेकिन सियासत भी तो जनता के लिए ही होती है. इस गतिरोध से जनता को क्या हासिल हुआ, ये सब जानते हैं. शायद ये विपक्ष की सियासी मजबूरी ही तो है जो अपने गतिरोध से जनता की उम्मीदों को धुंधला कर रही है. एक बात सुनना मेरे ध्यान से बैठ जाइए. मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है. गिरावट की कोई हद नहीं है. आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे. आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो. मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए. कुछ तो सीमा होती होगी. कुछ जगह तो बख्शो. कुछ जगह तो बख्शो. Sit down. Office of Chairman Rajya Sabha and Office of Speaker is very different. Political parties will have their cross currents. They will have exchanges. But imagine a senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker. How ridiculous, how shameful,
How unacceptable. Question number 166, Shri Sanjay Raut not present. The House will meet at 2 p.m. today. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद में घटनाओं पर अपना दुख और पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी किसान और जाट पृष्ठभूमि को निशाना बनाए जाने से वो व्यक्तिगत रूप से आहत महसूस कर रहे हैं। I have urged the House. You are not aware of the kind of response that is against this institution in the mind of the people. And we had the occasion to see the lowest level. Mr. Chidambaram is here. Mr. Chidambaram, you are a very senior member. Imagine what must be going through my heart when your senior leader videographs a member parliament mocking the institution of chairman. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिल में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, झुग्गी झोपड़ी के लिए कोई जगह नहीं है। ये एंटी पुअर और एंटी पिछड़ा वर्ग जो इनकी मेंटालिटी है, ये बार बार दर्शाती है। आम आदमी और कांग्रेस इसमें साथ में, ये इंडी घमंडिया गठबंधन का सही चेहरा यही है। और आज इतनी प्रतिक्रिया हो रही है, मैं अभी देख रहा था सब टीवी पर, सभी टीवी चैनल्स पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया हो रही है। जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के सदस्यों ने जो हमारे सदन का अपमान किया है, हमारे नेता का अपमान किया, हमारे चेयरमैन का अपमान किया है, इस सदन के लीडर के रूप में आज चेयरमैन हम सबका संरक्षण करते हैं। पूरे जाट समाज ने इसकी निंदा की है और यहाँ एक जाट नेता कांग्रेस का बैठा हुआ आपका अपमान होते हुए इन्होंने निंदा नहीं की है। ये है कांग्रेस का चेहरा। ऐसा नहीं है कि हमारी संसद ने पहले गतिरोध नहीं देखे। जी हाँ, देखे हैं, कितने ही मौकों पर देखे हैं, लेकिन उनका हल इसी लोकतंत्र के मंदिर की चौखट से निकला है। लेकिन इस दौर की सियासत शायद सत्ता तक ही सीमित नजर आती है, जहां संसद चलाने से ज्यादा शोर सुनाई देता है। Members do not go to the seat. I will have to take stringent action, and I have indicated, honorable members, we cannot exemplify our conduct by misdemeanor, violating rules, not following procedure, not following directives. Honorable members, one second. Calm down. Honorable members, those of the members who have come in the well are cautioned by me to take their seats immediately. Okay, so you will not take your seat. You, Mr. Derek O'Brien says, we will not take seat. Mr. Derek O'Brien says, we will defy the chair. Mr. Derek O'Brien says, I will not respect the rules. Mr. Derek O'Brien says, gesticulating, theatrics, violently, he will defy the chair. This is a severe misconduct. I will not, honorable members, withstand it. No, I will not. This is a misconduct. I cannot let down. No. Honorable members, hear me for a minute. But keep calm. I am forced by misconduct of some of the members whose details I have noticed. Honorable members, I have, and look at responsible people. I hereby name Shri Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named to leave the house immediately. What are you doing? Mr. Derek O'Brien, you have committed breach of privilege. Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. The house is not in order. No.
approve of it? He walks up to this place. Mr. Khadge, leader of the opposition, can you imagine a member walking to this place? Shameful event. My head is in shame. सभापति ने बार बार सदस्यों से सदन चलाने की अपील की। Otherwise, you will start dancing also. Don't do it. Take your seat. Don't take your seat. पहले बैठिए पहले मुझे इससे पहले भी सभापति ने उच्च सदन में विपक्षी दलों के सांसदों से शांति बनाए रखने और सदन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करने की बार बार अपील की। I urge you to follow the rules, engage in orderly conduct, don't reduce yourself to a shouting brigade, don't let down the reputation of this august house before the people at large. Your conduct has to be so exemplary that people can emulate it. As chairman of this august house, a rare privilege that I have, I bow my head in shame that we are far from the expectations of the people. Our conduct is far distant from rules. I find experienced members getting into this mode. I urge you with folded hands, save the temple of democracy. Don't sacrilege this temple of democracy. Please follow the rules. You are required to quit the proceedings of the house so that legislative work can continue. People of this country pay handsomely to sustain our parliament institution. They have high expectations. They want us to engage in our constitutional ordainment, discharge our obligations. It pains my heart, and it will pain heart of every Indian today, that this upper house that has to enlighten the people at large. The house stands adjourned. सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार को पत्र लिखकर सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद मांगी। सभापति महोदय जी ने खड़गे जी को दूसरा पत्र भी लिखा। पहला पत्र 19 दिसंबर को लिखा गया, दूसरा पत्र 21 दिसंबर को लिखा गया। आइए आपको सुनाते हैं पत्र में सभापति ने क्या लिखा। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, 13 दिसंबर 2023 से लगातार आपके साथ बातचीत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाया जा सके। लोकतंत्र के हित की सेवा के लिए स्वस्थ बहस, चर्चा, विचार विमर्श और बातचीत में शामिल होने और अशांति और व्यवधान से बचने के लिए हमें अपने संवैधानिक नियमों का पालन पोषण करने की आवश्यकता है। 14 दिसंबर 2023 को आपकी प्रतिक्रिया, जब तक गृह मंत्री इस मामले पर बयान नहीं देते और उसके बाद 267 के तहत चर्चा नहीं होती, तब तक सदन में कोई अन्य बिजनेस लेने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि किसी भी बैठक जब तक कि ये मसला नहीं सुलझता के लिए कोई अवसर नहीं है। इस मामले को किसी अन्य तरीके से पारित करना आसन के फैसले के साथ साथ संसदीय सार के अनुरूप नहीं है। आपकी 15 दिसंबर 2023 की प्रतिक्रिया, चूंकि इस बैठक को बुलाने का कोई औचित्य नहीं है, मुझे खेद है कि मैं इसमें शामिल नहीं हो पाऊंगा, पर दोबारा गौर करने की जरूरत है। अध्यक्ष के अनुरोध पर बातचीत में शामिल न होने का विचार ही लोकतांत्रिक मूल्यों के केंद्र में संवाद के रूप में समझ से परे है। मैं आपसे यथाशीघ्र बातचीत के लिए समय निकालने का आग्रह करता हूं ताकि राज्यसभा में सुचारू कामकाज हो सके। सादर, जगदीप धनखड़। श्री शरद पवार जी, आपके दिनांक 19 दिसंबर 2023 के पत्र के संबंध में मेरा ये बताना आवश्यक है कि 13 दिसंबर 2023 को सुरक्षा में हुई चूक हम सभी के लिए एक चिंता का विषय है।
माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने तत्परता के साथ इस मामले में अन्वेषण और जांच सुनिश्चित की। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बातचीत की और कई सुझावों को कार्यान्वित किया। इस घटना को दलगत दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए और इस समस्या का समाधान करने तथा इस संबंध में उचित उपाय करने के लिए हम सभी को सामूहिक रूप से विचार करने की आवश्यकता है। आपको स्मरण होगा कि 14 और 15 दिसंबर को सभा में मैंने जोर देकर कहा था कि हम सभी इस गंभीर मुद्दे पर एक मत हो सकते हैं। अत्यंत संयम और आपके एवं अन्य नेताओं के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों में एक व्यापक धारणा है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो किसी सामूहिक चिंता से निपटने के लिए सामूहिक संकल्प प्रदर्शित करने की जरूरत से पूर्णतः अलग है। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि एक कुशल राजनीतिक का दृष्टिकोण प्रदर्शित करने और उच्च सदन की गरिमा को परिलक्षित करने के बजाय यहाँ तक कि अनुभवी सदस्यों ने भी दलगत भावना से प्रेरित दृष्टिकोण ही अपनाया। सदस्यों द्वारा अत्यधिक कदाचार और सभापीठ के निर्देश की लगातार अवज्ञा किए जाने के कारण उनका निलंबन अपरिहार्य हो गया था। सादर, जगदीप धनखड़। विपक्षी सांसद की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करने को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच राज्यसभा सदस्यों ने सभापति के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के सम्मान में सदन में 1 घंटे तक खड़े रहे। खड़े होने वाले सदस्यों का साथ ट्रेजरी बेंच ने भी दिया। पूरा संविधान पद का और आपका अपमान किया है, ये तो हम घोर निंदा करते हैं सर। कल भी हमने इसका निंदा किया है। किसी वर्ग और समाज को ऐसे कलंकित करना बिल्कुल ठीक नहीं है सर। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, सुना हूँ, पढ़ा हूँ और देखा हूँ, 20 वर्ष से मैं इस पार्लियामेंट में हूँ सर। ये पहली बार इस लेवल तक जा रहा है कि इसका हद ही नहीं है सर। ये तो मैं घोर निंदा करता हूँ। ये बार बार संविधान पे पद पर जो है ऐसे लोगों को अपमानित कर रहे हैं। पहले तो 20 वर्ष तक प्रधानमंत्री जी को अपमानित किया क्योंकि वो गरीब फैमिली से आते हैं, ओबीसी के हैं, इसीलिए अपमानित करते ही गए सर। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपमानित किया साहब। बाद में राष्ट्रपति को अपमानित किया सर। राष्ट्रपति को अपमानित किया, ये ट्राइबल वुमन है सर। और अभी आप जो किसान पुत्र है, पहली बार एक जाट समाज के किसान पुत्र इस लेवल पर आ गए सर, उपराष्ट्रपति तक पहुंच गए। तो इस उपराष्ट्रपति पद को, संविधान पद को अपमानित कर रहे सर। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सर, तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान सर। इसलिए हमारे सब सदस्य का इच्छा है कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री पद को आपको अपमानित करते हैं, राष्ट्रपति को अपमानित करते हैं। कल जो आपको अपमानित किया है, आपके पद को अपमानित किया है, संविधान को अपमानित किया है, उसके लिए हम इस सदन में कार्रवाई जो प्रश्नकाल आप चला रहे हैं, इसमें आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में, आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में हम खड़े होकर ये प्रश्नोत्तर में हैं और हम प्रश्नोत्तर में हम भाग लेते हैं सर। और इसके साथ ही साथ इसका प्रेसिडेंट भी, माननीय राष्ट्रपति भी इस घटना का खंडन किया है। राष्ट्रपति जी ने ये कहा है, आई वॉज डिसमेड टू सी द मैनर इन विच, आई कोट सर, आई वॉज डिसमेड to see the manner in which our respected Vice President was humiliated in the Parliament complex. Elected representatives must be free to express themselves, but their expression should be within the norms of dignity and courtesy. That has been the parliamentary tradition. We are proud and the people of India expect them to uphold it. सर, इसके साथ ही साथ तो ओम बिरला साहब भी, इसका हमारा स्पीकर साहब जो है, तो ये भी खंडन किया है। माननीय
स्पीकर साहब ने कहा है संसदीय परिसर में माननीय संसद के द्वारा उपराष्ट्रपति के संविधान पर का निराधार करने का और अपमानित करने वाले गंभीर दुर्व्यवहार के बारे में माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय सभापति राज्यसभा को अपनी गहरी चिंताओं और पीड़ा अवगत कराया। यह अचंभित करने वाली बात है कि एक संसद ने इस निंदनीय कृत्य को वीडियोग्राफी के जारी प्रचारित करने का फैसला किया। गिरावट का यह एक नया स्तर है और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले कोई भी व्यक्ति भी कभी भी इसकी सराहना नहीं करेगा। लोकसभा स्पीकर, देश के बहुत बड़े लोग विभिन्न सेक्टर में जो काम करते हैं बड़े लोग इसका खंडन किया है सर।